Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are discussing teachings of Holy Gita. We already covered 9 chapters, and yesterday I took a break because yesterday was a hectic day. You have to appear in examination, and we wanted to continue our journey when you are more relaxed. So in this video we will discuss chapter 10th. In this chapter 10th, Lord Krishna tells us God is present everywhere. Certain people, they are in search of God. They want to see God at a particular place. In this chapter, Lord Krishna told us that I am in everything. Anything that is around you, anything that is around us. That means God is karma. Around us, what is there? An act. Say we have to wake up early, it is an act. We have to decide and plan what we have to do, this is an act. How to execute it, it is an act. How to find good resources of study, it is an act. How to follow advice of a good advisor, it is an act. So God is everywhere. We need not go to a particular place to find Him. Lord Krishna says in this chapter, why you are searching God? I am everywhere. I am within you, outside you. But you should believe in yourself. You should have faith in yourself. You should have faith in your acts. You should have faith in your actions. You should always work towards fulfillment of an objective. You should always work towards fulfillment of your desire. You should always work towards fulfillment of your dreams. So in life, you have to plan, then find the resources, and then execute. Following the teaching of Holy Gita, this channel is always providing you a right direction, a right mission, a right advice. Because planning is the most vital and important aspect of our success. If someone is successful in planning the things in a systematic manner and then he finds the resources to fulfill that planning and effectively execute it, success is bound to come. So to be achiever in life, to pass an examination, to get the job, what we need? Effective planning, mobilizing the resources, that means good material for study, that I always advise. And the third is execution of that. Execution means following the timetable that I have given to you. So the teachings of chapter 10 is God is everywhere. I must have vision and sight to see Him. And if I can feel God is around me, God is with me, God is helping me, naturally I will be successful. Because then I am confident. Because if I am assured that someone is helping me, I am assured of success. So good advice, the blessing of God always leads us to success. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. पवित्र गीता के क्या उपदेश हैं, उससे हमें क्या सीख मिलती है, ये सीरीज हमने शुरू की थी. 9 अध्याय हम पूरे कर चुके थे. कल हमने विश्राम लिया. इसलिए विश्राम लिया क्योंकि कल आपका एग्जाम था, काफी लोग उसमें चिंतित थे, तो वो शायद इस पर
टाइम ना लगा पाते, तो हमने सोचा एक दिन का ब्रेक करते हैं, क्योंकि आधी जर्नी हमारी हो चुकी है। आज हम 10वां अध्याय डिस्कस कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि सी डिविनिटी ऑल अराउंड, मीन्स ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हर चीज में है, ईश्वर आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, ईश्वर आपके हर उस काम में है जो आप कर रहे हैं, ईश्वर आपकी हर उस इच्छा में है जो आप चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपना कर्म करना है, हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना है, हमें हर समय कर्म करते रहना है। अब कर्म किस दिशा में करें, कर्म कैसे करें, ये सबसे बड़ा विषय व्यक्ति के सामने होता है। मान लीजिए मुझे कोई एग्जाम पास करना है, तो मेरा मूल प्रश्न क्या होता है कि मैं क्या करूं कि मेरा एग्जाम पास हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज होती है प्लानिंग। क्या मुझे करना है उसका एक खाका खींचना, उसका एक टाइम टेबल बनाना। तो प्लानिंग जो है, योजना बनाना जो है, सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मैं योजना बनाने में कामयाब हो जाता हूं, तो मेरी सक्सेस का पहला कदम मैं उठा चुका हूं। योजना बनाने के बाद मुझे क्या करना है कि इस योजना को मैं कार्यान्वित कैसे करूंगा, कैसे मैं इसको इस स्वरूप में लाऊंगा कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो रिसोर्सेस, कौन सी किताब होनी चाहिए, कहाँ सा मटेरियल होना चाहिए, क्या मेरा टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, ये मुझे ज्ञान होना। तो डिफरेंट वीडियोस में हम आपको ये ज्ञान देते हैं। इसके बाद उस पर चलना, इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन, उस बताए रास्ते पर चलना। तो जब हमने ये मान लिया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे आसपास है, तो मुझे क्या मिलता है? आत्मबल। मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मेरा ईश्वर मेरी मदद कर रहा है उसको पूरा करने में। तो मेरे अंदर क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास। और जब मेरे में आत्मविश्वास बढ़ता है, जब मुझे पता है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो सही रास्ता है, तो मुझे कामयाबी मिलती है। सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति का आत्मविश्वास, उसका अपने ऊपर विश्वास, उसकी मंजिल में स्पष्टता, उसको दिशा बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इन्हीं मूल उद्देश्यों पे चलते हुए ये चैनल आपको क्या कर रहा है? समय समय पर राइट एडवाइस दे रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, आपको रास्ता बता रहा है कि किस रास्ते पे आप चलकर कामयाब हो सकते हैं। और आपने देखा हजारों लोगों ने उस रास्ते को पाया, उस रास्ते पे चला और आज कामयाब होकर नौकरी कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण हमें इस अध्याय के अंदर इस बात का आभास करा रहे हैं कि भगवान को ढूंढने मत निकलो। भगवान तो आपके अंदर ही है, भगवान तो आपके आसपास ही है। केवल कर्मशील रहो, हमेशा अच्छे कर्म करो, कर्म उस दिशा में करो जिस दिशा में आपका उद्देश्य है, कर्म उस दिशा में करो जिस दिशा में आपके सपने हैं, कर्म उस दिशा में करो जहाँ से आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है। तो यदि हम दिशाहीन नहीं हैं और हमारी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है, तो कामयाबी भी हमें अवश्य मिलेगी। ये इसके अंदर गीता से के 10वें अध्याय का की सीख है। गॉड ब्लेस यू ऑल।